So Anita ma'am, now hand over to you. You please officially now you can start. We are live on Facebook. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Happy Ganesh Chaturdashi. A very good morning to everyone. I, Anita Bharswan Singh, welcome you all in this international webinar on common challenges among players of India in becoming international athlete and the possible solution, being organized by Everest Sports Academy and Everest Yoga Institute, Ludhiana, Punjab. It gives me immense pleasure to welcome our chief guest of today's webinar, none other than the captain of Indian basketball team and soon be Arjun awardee, Mr. Vishesh Bhigwanshi sir. Thank you, Bobby. Thank you. Thank you. Currently, he is the captain of the Indian men's basketball team. He is the first Indian player who was drafted for Australian Basketball League by Adelaide, 36 years. He has 14 years of international career continuously without any indiscipline, and that is highest for any Indian player. He has been awarded as the best shooter, best assist, best passer, best scorer in many international championships. At the early age of 16, he was crowned with the title of the most valuable player of Asia. He first became the captain of the national team in age of 19, that is in 2010 at the South Asian Games, Dhaka, Bangladesh, which is youngest captain ever for Indian in basketball. He holds the record of 5 Federation Cups MVP, highest number of medals in national championship, that is 9 gold medal, 3 silver medal, 3 bronze medal. He also holds the record of winning 10 gold, 2 silver and 1 bronze in international championship as well. That is the most medal for any individual in international championship in India. India had a historical win against China in the year 2014 and 2016, where the team was led by Vishesh sir. He was also the highest scorer in both the matches. This determination and loyalty for game is ideal for so many players in India, and his sense of discipline is appreciated by the federation and other sports lovers. He has dedicated his entire life for India and basketball, and he is currently working with ONGC and posted in Dehradun. I welcome you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. And यहाँ पे जुड़े हुए इस वेबिनार में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, कोचेस हैं, सबको मेरा नमस्कार. और जैसा कि आज हमारा ये एक टॉपिक है कि एक कॉमन चैलेंज है जो प्लेयर्स के बीच में एक इंटरनेशनल प्लेयर बनना, और इसके लिए जो पॉसिबल सॉल्यूशन है. तो जिस हिसाब से यहाँ पे अभी सर ने थोड़ी देर पहले बोला था कि हम एक बुझते हुए दिए हैं और अब बाकी सब आप लोग हैं. तो दिस इज नॉट अबाउट कि आप एक बुझता हुआ दिए हैं या जो भी हैं. दिस इज समथिंग कि आपने अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस लिया है, और उस एक्सपीरियंस के थ्रू जो आपको एक जो आपका एक्सपीरियंस है, जब वो आप एक यंग जनरेशन जो हमारे आने वाली जनरेशन है इनके साथ शेयर करते हैं एज अ कोच, एज अ मेंटोर, एज अ ट्रेनर, तो कहीं ना कहीं वो उन प्लेयर्स को एक राइट पाथ जो दिखाने की बात है, और एक राइट पाथ के साथ साथ एक मोटिवेशन देने की बात है, वो आप लोग करते हैं इसके थ्रू. तो मैं बहुत मतलब इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहता हूँ पहले तो, कि भाई आप लोगों ने इतना बढ़िया एक ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है और इतना मतलब अच्छा टॉपिक चुना है कि भाई आज की जनरेशन को सबसे बड़ी बात है कि एक प्लेयर बनना, इंटरनेशनल प्लेयर बनना, ये सभी लोग नहीं सोचते हैं. सबके मन में ये बातें नहीं आती हैं कि आज भाई हम अगर बास्केटबॉल खेल रहे हैं या अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं या हमें कोई सा भी गेम खेलना है, तो भाई हमें इंडियन टीम के लिए खेलना है या हमें देश के लिए कुछ करना है. लोगों के अंदर आज एक थोड़े टाइम के लिए बीइंग अ फन स्पोर्ट्स रह गया है,
बट मोस्टली ये चीजें हैं कि भाई प्लेयर्स को आज ये समझना पड़ेगा कि भाई जो मतलब एक फील्ड स्पोर्ट्स होता है, फील्ड स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है गेम के अंदर, क्योंकि अगर आप 1 से 2 घंटा फील्ड स्पोर्ट्स पे नहीं देंगे, आप सबसे बड़ी बात है कि आप मेंटली हेल्दी नहीं रहेंगे, फिजिकली हेल्दी नहीं रहेंगे। तो आजकल तो ये दोनों चीजें मोस्टली रिक्वायर्ड हैं हर एक इंसान के लिए, हर एक पर्सन के लिए। तो मैं बिल्कुल इन चीज़ों पे बहुत मतलब आप लोग को बधाई भी देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे कोचेस यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस वेबिनार से, कि आप लोग ये काम कर रहे हो हमारी जनरेशन के लिए, कि भाई आप हमारी जनरेशन फील्ड स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रही है। और गुरु का जो एक रोल होता है, गुरु का जो एक महत्व होता है जीवन में, वो सबसे अहम होता है। क्योंकि अगर मैं अपने ही खेल की बात करूं कि मैं जैसे बास्केटबॉल खेलता हूं, बास्केटबॉल में हमें बॉल मारनी होती है रिंग में। वो तो अगर मैं चाहूं तो एक कोई ऑटो ड्राइवर को बुला लूं, वो भी आके बॉल फेंक देगा। लेकिन एक गुरु का महत्व है, एक शिक्षक का महत्व है कि वो हमें एक राइट डायरेक्शन दिखाता है, हमारे साथ मेहनत करता है थ्रू द ऑल टाइम, जब तक हम एक अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंचते हैं। और गुरु ही होता है जो हमारे अंदर की प्रतिभा को देखता है और निखारता है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अहम रोल जो हमारे कोचेस हैं उनका है कि आप कैसे मतलब एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। और खेल कोई भी हो, एक ये एक तपस्या होती है जिसमें कि आपको मतलब अपना सब कुछ दांव पे लगा के मेहनत करना होता है, और आपको अपना 100% देना है थ्रू आउट योर लाइफ, जब तक आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन जाते हैं, इस देश को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और जब आप इस देश को एक बार रिप्रेजेंट करते हैं तो आप खुद ही देश को रिप्रेजेंट करने के बाद जो फीलिंग है ना, जो एक एहसास होता है अपने देश के लिए खेलने का, वो आपको कभी इससे अलग होने ही नहीं देता। और आप कंटिन्यूअसली और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा तरीका ही यही है कि भाई जो कोचेस हैं और जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो हमारे साथ एक राइट डायरेक्शन में काम करते रहें, तो हम बिल्कुल इस देश के लिए मेडल्स और इस देश के लिए खेलना, और बहुत सारे यंग प्लेयर्स को मोटिवेट करना देश के लिए खेलने के लिए और मेहनत करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है कि भाई प्लेयर्स अगर थोड़ा सा ग्राउंड स्पोर्ट्स में